Hello everyone. Today we are studying Walmart. Basically, what are the fundamental ideas? What were the strategies that made Walmart the biggest retail chain of the world and made it thrive in its initial days, the early days, which are, I guess, the most difficult for any business to establish. Just before we start, a 2 to 3 minute introduction about Walmart. One, as we all know, Walmart is the biggest chain. It's a value chain. It's basically based on volume. People come to Walmart for price deals. When they get bulk deals at a very good price, that's what Walmart plays at. It's no luxury store. Um, yeah. Second, the founder of Walmart. Let's talk 2 minutes about him. Sam Walton, the founder. He started the first Walmart in 1962, though his learning started in 1945 when he first took franchisee of another retail store in a small town in America. That's when his journey started and he started learning. Few things about Sam Walton. He was a learner. Any book, any publication, any interaction, he would visit competition store, and everywhere his focus was just one thing: what is the right, what is the good that they are doing. He would pick it up and implement that in his store. Second, he was very closely involved in his operations. सारे स्टोर्स में क्या हो रहा है उनको बहुत अच्छे से पता था. वो बहुत घुस के सारी चीज़ें देखते थे, करते थे. थर्ड, he was frugal, बहुत कंजूस थे, and they had a money crunch for a very long time, and he belonged to a very humble background. So money had great value to him. So जब तक कोई खर्चा बहुत एसेंशियल नहीं हो कि भाई उसके बिना तो अब चल ही नहीं सकता, वो खर्च नहीं करते थे. Now with that background, let me start with the strategies. So I have basically categorized these strategies into 7 broad classifications so that it's easier to follow. I'll just go through the classifications and then we'll pick them one by one. First one, reporting. उनको अपने स्टोर्स में कितना कंट्रोल था, that we'll cover here. Second, studying competition. अपने कंपटीशन को कैसे स्टडी करते थे, कितना फोकस था उस चीज़ पे, वो हम यहाँ देखेंगे. थर्ड, एग्रेसिव प्रमोशन. पीपल से ही वॉज अ वेरी वेरी एग्रेसिव प्रमोटर. वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं करते थे. ही डिडंट बिलीव इन दैट बिकॉज पैसे लगते हैं. बट फिर भी बिना एड दिए भी कैसे मार्केट करना है, कैसे एग्रेसिवली किसी चीज़ को प्रमोट करना है, ये चीज़ का वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे, बहुत अलग अलग तरीके से ट्राई करते थे, एंड दैट विल स्टडी हियर. Next, their weekly meetings, which they say were the backbone of Walmart. We'll come to that. Next, customer is king. What did it really mean for Walmart? We'll come here. How did they treat their employees? We will cover that here. Then we have the location. उनका कहना ये था कि for success of any store, the location and the price you pay for the location is vital. So we'll cover here कि वो लोग इस location choose करने के लिए क्या करते थे, क्या study करते थे. Now coming to the first classification, reporting. So Sam, from the very first day, he would visit his store, and जैसे जैसे stores increase होते गए, very frequently वो planned visit भी करते थे और वो surprise visits भी करते थे. And it is said history में, if there is one founder who has visited his stores the maximum times, it is Sam Walton. उनको बहुत अच्छे से पता था स्टोर्स में कौन मैनेजर्स हैं, क्या वहाँ पे कल्चर है, क्या माहौल है, क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है. वो इस चीज़ में घुसे हुए थे. सेकंड, वो अपने हर स्टोर की वीकली रिपोर्ट उस स्टोर के मैनेजर से मंगाते थे, जिसमें वो लोग क्या कितनी सेल हुई है, क्या क्या आइटम्स कितने बिके हैं, और सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग आइटम कौन सा है, ये रिपोर्ट करते थे. अगर उनको किसी भी रिपोर्ट में ये लगता था कि some प्रॉब्लम विद दिस रिपोर्ट, या वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे, तो वो खुद उस स्टोर में जाके प्रॉब्लम फिगर आउट करके और उस स्टोर की प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करके उसको लेते थे. देन मंथली he used to prepare statements himself. This is in 1960s.
इवन बिफोर, क्योंकि जब फ्रेंचाइजी भी थी तो ही वॉज मैनेजिंग मल्टीपल स्टोर्स इवन बिफोर वॉलमार्ट स्टार्टेड. एंड इवन एट दैट टाइम कोई कंप्यूटर्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, बट हर महीने जो रिपोर्ट्स स्टोर मैनेजर से आती थी उनको देख के वो हर महीने सारे स्टोर्स की क्या बैलेंस शीट बन रहा है, क्या पीएनएल, कितना प्रॉफिट, कितना खर्चा, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ये सारी रिपोर्ट वो रखते थे. इनफैक्ट उनके पास अपनी एक शीट थी जिसमें वो सब मेंटेन करते थे और वो खुद अपने हाथों से लिखते थे सो दैट उनको नंबर्स याद रहे. सो दिस वॉज हाउ मच फोकस ही हैड on reporting and keeping a control on the stores. Moving to the second one, studying competition. वो जितना टाइम अपने स्टोर में स्पेंड करते थे उतना ही टाइम अपने कॉम्पिटिटर के स्टोर में स्पेंड करते थे. जब उन्होंने अपना पहला फ्रेंचाइजी भी लिया था 1945 में, उनके कंपटीटर का स्टोर आसपास एक एरिया में था. एंड आगे जाके उस स्टोर मैनेजर का इंटरव्यू हुआ एंड ही यूज्ड टू से कि वो वहाँ जाते थे, वो सब चीज़ें स्टडी करते थे, बाहर निकलते उनको जो जो प्राइसेस याद होते थे वो सारे अपने नोटपैड में लिखते थे कि इसका ये प्राइस है, इसका ये प्राइस है, इसका ये प्राइस था. और वो जाते थे, बहुत बार वो स्टोर मैनेजर्स या वहाँ के स्टोर हेड से मिलते थे. कई बार लोग उनसे बात करते थे, कई बार नहीं करते थे, पर जो बात करते थे वो 1 घंटा 2 घंटा उनसे सवाल पूछते रहते थे. आप कैसे प्राइस करते हो, आप कहाँ से सप्लाई करते हो, आप कैसे डिस्प्ले करते हो, आप कैसे मार्केट करते हो, जो भी सवाल उनके दिमाग में होते थे वो उनसे पूछते रहते थे. एंड सैम वॉल्टन सेज दैट दिस इज वन स्ट्रैटेजी दैट हैज हेल्प्ड हिम लर्न अ लॉट. एंड नॉट जस्ट हिम, वो अपने सारे स्टोर मैनेजर्स को फोर्स करते थे कि वो भी उनके आसपास के जो भी कॉम्पिटिशन में स्टोर्स हैं वहाँ जाएंगे, दे विल चेक देम आउट, दे विल सी कि वहाँ पे क्या हो रहा है एंड व्हाट इज द राइट थिंग दैट दे आर डूइंग. एंड देन वो राइट थिंग वो अपने स्टोर्स में इंप्लीमेंट करते थे एंड दे यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट विद दैट. नेक्स्ट, कोई भी उनको बुक मिल जाए रिटेल के ऊपर कि रिटेल बिजनेस कैसे चलता है, इस इंडस्ट्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वॉट एवर, कोई भी उनको किसी लाइब्रेरी में बुक मिल जाए या फिर कोई भी जर्नल जो रिटेल पब्लिकेशंस के ऊपर हो, दे वुड रीड, ही वुड रीड ऑल ऑफ देम. दैट वॉज अनदर सोर्स ऑफ गुड लर्निंग फॉर हिम. एक उनके पास एक छोटा सा पैड रहता था, येलो पैड जो फेमसली लोग कहते हैं, एंड ही वुड जस्ट कीप नोटिंग ऑल हिज लर्निंग्स देयर. वो स्टोर में जा रहे हैं, स्टोर मैनेजर से बात कर रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, ही वुड कीप नोटिंग एवरीथिंग देयर सो दैट इट वॉज अ रिकॉर्ड फॉर हिम कि ये इम्प्लीमेंट करना है. थर्ड कैटेगरी, एग्रेसिव प्रमोशन. नाउ दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, वो एड में खर्चा नहीं करते थे, ना तो उनके पास पैसे थे और वो बहुत कंजूस थे, तो he wasn't a person to spend on advertisement. So what did he used to do? First, he believed कि अगर आपको कुछ बेचना है तो वो एकदम सेंटर में होना चाहिए कि लोग उसको अनदेखा नहीं कर सकते. सो उनके स्टोर्स में घुसते ही बहुत बड़ा सा एक एरिया होगा या एक पाइल होगा किसी सामान का जो वो बेचना चाहते हैं एंड नोबडी वुड बी एबल टू इग्नोर इट. इस तरीके से वो अपना सामान कैटेगराइज करके स्टोर में रखते थे जो बेचना होता था मीनिंग कि वो एक हॉट सेलिंग आइटम रखते थे. सो एक कुछ जनरल चीज़ें हैं जो भी वो बेच रहे हैं, एंड देन देयर वर अ फ्यू थिंग्स जो वो हॉट सेलिंग आइटम्स रखते थे कि उसके चक्कर में लोग आएंगे, वो खरीदने आएंगे और वो उसकी रीज़न से बाकी स्टोर भी देखेंगे, बाकी सामान भी देखेंगे एंड दे विल गेट एन आइडिया ऑफ अच्छा ठीक है यहाँ पे वॉलमार्ट है, ये चीज़ें करता है एंड ऑल दैट. Another very interesting thing on this. So एक तो हो गया डिस्प्ले, दूसरा हो गया प्राइस कैसे करेंगे. So वो क्या करते थे कि जो आइटम आसपास प्रमोट हो रहे हैं वो वही आइटम पकड़ते थे और वो आसपास उन सबका प्राइस देखते थे. किसी ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, किसी ने कहीं ऐड दिया, या कंपटीशन में जाके देख लिया, सबका प्राइस देखते थे और फिर अपना प्राइस उस प्राइस से कम रखते थे कि अगर हम उस प्राइस से कम रखेंगे तभी लोग हमारे पास वो खरीदने आएंगे. एंड दैट यूज्ड टू बिकम द हॉटेस्ट सेलिंग आइटम. नेक्स्ट, वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे डिस्प्ले से. डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, क्या आइटम ला सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, किस चीज आइटम पे इतनी अच्छी डील मिल रही है कि वो बहुत कम प्राइस पे उस आइटम को बेच सकें. इस चीज़ पे वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे, बहुत रिसर्च करते थे. एक एग्जाम्पल उनकी बुक में स्पेशली लिखा हुआ था, सो आई जस्ट कवर दिस एग्जाम्पल. एक बार उनके एक स्टोर मैनेजर ने डिस्प्ले ड्रामेटाइज करने के लिए टाइड के डब्बे मंगवाए. टाइड एक सर्फ एक्सेल आता है, आपने बहुत बार टीवी पैड देखा होगा, इंडिया में भी आता है काफ़ी टाइम से. सो जायंट साइज डब्बे, 3500 डब्बे मंगा के उसने सड़क पे ऐसे बिछा दिया मतलब ऐसे ब्लॉक बना दिया उन डब्बों का. एंड एवरीबडी वॉज लाइक तुम पागल हो गए हो, ये कैसे बिकने वाला है. इवन सैम वॉज लाइक ये तूने क्या किया, ये कैसे बिकेगा.
बट वो ऐसा डिस्प्ले बन गया कि लोग दूर दूर से आने लग गए कि भाई ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे रखे हैं यहाँ पे इतने सारे डब्बे, और ये इन्होंने क्या किया है। हफ्ते 10 दिन में वो डब्बे बिक गए। जो उनको लग रहा था कि ये तो वापस आएगी, इन्वेंट्री कैसे बिकेगी। सो दैट्स हाउ मच दे यूज टू एक्सपेरिमेंट विद डिस्प्ले, एंड दैट वॉज द वे दे यूज टू मार्केट। एक और छोटी सी चीज, वो लोग एवरी वीकेंड बोट सेल करते थे। बोट सेल मीनिंग वो क्या करते थे, स्टोर के बाहर जो पार्किंग लॉट टाइप एरिया होता है, खुला एरिया, उसमें ना बोट्स लगा के बोट्स में सामान भर देते थे और प्राइस लगा देते थे। सो एवरी वीकेंड एक कार्निवल फेस्ट टाइप हो जाता था कि लोग आते थे और वहाँ पे शॉपिंग करके जाते थे, एंड एक अच्छी प्राइस डील्स एंड ऑल होती थी। सो दिस यूज टू दिस हेल्प्ड अ लॉट इन मेकिंग देम popular, in people discovering them. Next, weekly meetings. Weekly meetings, as Sam says, was the backbone of Walmart, of their success. Every Saturday, सुबह 6-7 बजे, जो भी स्टोर मैनेजर्स होते थे, जब उनके पास 3 स्टोर्स थे तब भी वो ये करते थे, जब 50 थे तब भी करते थे, जब 400 हो गए तब भी वो ये करते थे, और अब भी शायद करते होंगे। Every Saturday they would meet and they would discuss ki what worked, what didn't work, what was the hot item, hot selling item, what was the feedback, when was customer happy, when was customer unhappy, आगे क्या करना है, क्या deals है, क्या strategy है. Every week for 2 to 3 hours, 4 hours they would sit and discuss this. And before this meeting, I just told you कि वो अपने स्टोर मैनेजर से वीकली रिपोर्ट मंगाते थे. सुबह 3 या 4 बजे Sam Walton, he used to wake up. He would study all those reports before the meeting would start. When it became a big company, he would take about 3 to 4 hours in studying these reports, and by the time meeting would start, he would have a fairly good idea कि कौन से स्टोर में क्या हो रहा है, and he was fully updated every week. So these weekly meetings helped the store managers and everybody to be on one pace, on one platform. It was a way they used to communicate every week. Every week such challenges, problems discussed होते थे, and they say this was one of the most important reason that Walmart is Walmart and that they thrived in their early days. Next, customer is king. We all have heard customer is king, and now really organizations, business actually put quite a focus on customer. For Walmart, what did it mean? They said we have two principles. One is sell low as possible, give good deals to customer, and second, satisfaction. No customer should go unhappy. If a customer has come to us, he should be satisfied, because he said that is your success. जब एक कस्टमर दोबारा आता है और वो रिपीट कस्टमर बनता है, वो 4 कस्टमर्स को और लेकर आता है, that is when you know that you will be successful. And that's what those were the two principles. So whenever they used to get a good deal on any product, और कभी कभी ये भी लगता था कि बहुत अच्छी डील मिल रही है, थोड़ा हम लोग भी अपने लिए मार्जिन बना सकते हैं, बिकॉज मार्केट में इतना कम प्राइस कोई भी नहीं दे रहा, वी स्टिल हैव अ गुड मार्जिन. बट सैम वॉज लाइक nothing doing, no greed, nothing. You get a good deal, you pass all the benefit to customer. हम लोग 30% मार्कअप करेंगे हर कॉस्ट के ऊपर, एंड दैट्स इट. उसके अलावा जो भी अच्छी डील मिल रही है वो सारा डिस्काउंट कस्टमर को जाएगा. सो डिस्काउंट हैज टू बी रियल. This was one of the Sam's main principle, that it has to be real discount. सिर्फ बोलने का डिस्काउंट नहीं होना चाहिए. They should really come here for price deals, and that's what ultimately happened. नेक्स्ट, कस्टमर इज किंग का ही एक्सटेंशन है. Sam used to say that if you want the customer to be happy, you want the people in your stores, your managers, your employees, your salespeople, everybody who's working in a store to be happy. Because when you take care of them, when they are happy, they treat customer properly, and then the customer is happy. ये उनका इट वॉज अ मेजर फंडा. ऑल्दो ही वेरी कैंडिडली सेज दैट शुरू में वो इतना सेंसिटिव नहीं थे इस चीज़ को लेके, बट धीरे धीरे ही अंडरस्टूड दिस, एंड
उन लोगों ने अपनी पॉलिसीज, अपने इंसेंटिव्स इस तरीके से प्लान करे दैट दे कुड पास ऑन गुड ग्रोथ. They really treated their employees well, and in turn they treated their customers well. Now what plans? A couple of things, important things. One, जब वो हायर करते थे वो ये कम देखते थे कि किस में कितनी नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है. वो ये ज़्यादा देखते थे कि एटीट्यूड कैसा है और वो हार्ड वर्क कर सकता है कि नहीं. बिकॉज सैम यूज टू से दैट if a person can really work hard and if he's sincere, he can do anything. So in fact, Walmart, they started with employing very ordinary people, no hi-fi people, no people with great qualifications. वो लोग college graduates वगैरह employ करते थे, and they just used to incentivize them well, give them responsibility, give them freedom, but keep a check. This was another principle of Sam when hiring. He used to say, hire good people, hire ordinary people, but hardworking people, good attitude people. Give them a lot of freedom for decision making, give them a lot of responsibility, and keep a good check on them, and they will do fabulous work. That's what Sam believed. कुछ plans जिन्होंने रखे to keep their employees motivated. One was invest and take stake. So उनके store managers, they had the option, in fact they were encouraged to invest some money in the store that they are managing and take a stake in the profit from that store. So this way he really become aligned to that store. Second, उनके जितने भी associates and employees associates, not just, we're not only talking about store managers, we're talking about that every small salesman who's there, that the truck drivers who are transferring goods from one place to other, even all these people, even they were counted as employees. Anybody who has worked 1,000 hours in a year for Walmart was considered an employee for their profit incentive plans. So a percentage of their salary would be given to them as profits if the company has grown well, and there was a formula according to the growth that they used to share this. Because the company grew really well, these people used to get really good salaries, and they were very, very happy if their store was doing well and the company in turn was doing well. Then very interestingly, there was a shrink incentive plan. Retail chains की सबसे एक one of the major problem is जो theft होती है, unaccounted inventory loss जो होता है. It's a bigger problem in a retail chain. So Sam said they had this plan. किसी भी स्टोर में अगर जो भी ये अनअकाउंटेड लॉस है, if this is less than the threshold जो भी वॉलमार्ट ने डिसाइड किया है, which used to be about half of the industry average, तो let's say इंडस्ट्री में 5% 7% है, सो वॉलमार्ट ने 2% 3% डिसाइड किया, let's say 2% डिसाइड किया. सो अगर कोई भी स्टोर की थेफ्ट ही जो होती है ये 2% तक है, ना उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम है, तो वो लोग एक एक्स्ट्रा बोनस उस स्टोर के हर एम्प्लॉय को देते थे. दे सेड this shrink incentive plan, it helped him to reduce theft by less than half of the industry average. This was a super successful plan. So maybe it will help you also somewhere in your store. This is about HR. And now coming to location. Like I said, Sam used to say that if you want a store to be profitable, you need to look at the location and how much you're paying for that location. Because return on capital employed, if you are able to control the capital employed, the ROCE will automatically improve. So कुछ चीज़ें जो वो लोकेशन चूज करने में देखते थे. 1, ट्रैफिक फ्लोस. ट्रैफिक किस तरफ जा रहा है, किस तरफ आ रहा है, वो ये एरियल व्यू से देखते थे. इस समय लोग गूगल मैप से देखते हैं. सिटी किस डायरेक्शन में ग्रो हो रही है, टाउन की पॉपुलेशन किस डायरेक्शन में ग्रो हो रही है, तो वो उसी हिसाब से अपना स्टोर लोकेशन देखते थे. कंपटीशन का स्टोर कहाँ पर है, बहुत आसपास तो नहीं है. और जो बड़े शहर होते थे, सो वॉलमार्ट की एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी. Because Sam started with a small town in America, he understood the potential of small towns.
कि वहाँ पे भी कितना बिजनेस है। एंड स्मॉल टाउन्स में ऑपरेशन कॉस्ट कम थी, रेंट कम था, परचेजिंग प्राइस कम होता था, तो इट रियली यूज टू कंट्रोल द एक्सपेंसेस। सो वो टाउन्स में ही ग्रो किया वॉलमार्ट हमेशा, और वो कभी बड़े शहर में नहीं गए। अगर बड़ा शहर कवर भी किया तो व्हाट डिड दे डू, उन्होंने उसकी बाउंड्री पे वॉलमार्ट लगाना शुरू करे। दे डिडंट गो इन द सिटी, जस्ट आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में उन्होंने वॉलमार्ट सेटअप शुरू किया, सीइंग कि किस डायरेक्शन में सिटी ग्रो हो रही है। एंड देन gradually the growth caught up in that direction and the people started coming. That's how they got established around the cities. They never went in the city because of the expenses. And he just thought if you're giving really really good deals, people will travel a bit to take the benefit. Yeah, बहुत सारे स्टोर्स तक, आई थिंक अबाउट 200-300 स्टोर्स तक सैम खुद लोकेशन चूज करते थे, खुद सारा प्राइस नेगोशिएशन करते थे। ही वॉज वेरी सेंसिटिव कि कितना प्राइस हर लोकेशन के लिए पे करना है। इनफैक्ट उनके बाद अभी भी his sons and daughter, his children, they are involved and very closely involved in every real estate transaction in every location uh, that gets established. But this book was written a few years back when Sam was there, so I don't know इस समय क्या हो रहा है, but yeah. So yes, these were some of the learnings that I had from Walmart. And personally, I think the book written by Sam Walton himself about his journey, very very insightful book, especially for the retail chains. And not just that, it gives you a lot of perspective into how do these big chains, what are the mindset of the founders, what do they think, कितना हार्ड वर्क इन्वॉल्व है या कितना इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व होता है, किस तरह एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हैं, किस तरह कस्टमर्स के बारे में सोचते हैं, रिपोर्टिंग, कंट्रोल. So maybe you should also check out that book. The book's name is Made in America. Made in America by Sam Walton. And yeah, I hope this video was helpful. Thank you.